So here I start with my name and LinkedIn. Hi guys, my name is Divya and you all can connect me on LinkedIn. Okay, let's start with nominating. Like Divya, you told about yourself first. Like nominate anyone from where like they'll tell about themselves. Am I audible? For the people who have joined now, I would like to repeat. You all can introduce yourself in the chat box with your LinkedIn to interact. Divya, I guess we can start. Okay, guys, so we start with our session. Welcome back to day 2 of our 3-day workshop building an API using Python. So, can I see who all joined yesterday? Can you please comment in the chat box with 0 or 1? If you were present yesterday, please send 1. Great, 1, 1, 0. Okay, so those who didn't join, I hope you all know the basics of Python. Great. So whether you joined us for the first day or not, today is the day you can't afford to miss, as today you will be building your own API, your very first application programming interface. So we have a speaker with us, Mr. Shashwat Gupta. He is an development relation intern at Kepler, and he is an Java and Python enthusiast. He has already done so many workshops. He has a great experience with it. So welcome, Shashwat. Hey folks, hi everyone. Hope the slides are visible. And thank you for joining us. And it will be really appreciated if you all can turn on your cameras, so it won't be like
मैं बस ब्लैंक स्क्रीन से बात कर रहा हूँ. So if you can please try to turn on your cameras, and it's okay otherwise. So just a minute. The slides are visible, right? Okay, cool. So today we'll be seeing about backend development, and we'll look into what are frameworks, what is backend, why do we use backends, like is frontend not necessary that we needed backend, and also we'll build our API. We'll see a little bit of code with APIs, like we'll do the create and read operation today and update and delete operation tomorrow, because a lot of development, a lot of code will like make you a bit confused. So थोड़े से स्टार्ट करते हैं आज. बेसिकली पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं क्या होता है, एंड क्रिएट एंड रीड वाला ऑपरेशन कर लेंगे, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा विल डू इट टुमारो. सो this is a little bit about myself. I'm Shashwat Gupta, and I'm a developer relations intern at Deploy. And also, I'm a backend developer who is always into learning. I'm also a cloud enthusiast. मैं क्लाउड में बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ अभी, एंड सीखता रह रहा हूँ about cloud. And yeah, hackathons always. So that was a little bit about me. So does anyone here knows about frameworks? You can turn on your mics and tell me what do you understand by the word framework. It's okay if you're wrong, not a problem. Everyone here is a beginner. Anyone? ओके कूल, आई विल गो विद फ्रेमवर्क्स. सो फ्रेमवर्क्स हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं, लाइक जब हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है फिर भी फ्रेमवर्क्स की नीड क्यों पड़ी. सो फ्रेमवर्क्स आर बेसिकली जब हमको किसी चीज़ में डेवलपमेंट करना है, सपोज पाइथन डेवलपमेंट जो हम लोग देख रहे हैं आज, हम लोग पाइथन डेवलपमेंट में एपीआई बनाएंगे यूजिंग फ्लास्क. सो हम लोग फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट प्योर पाइथन लैंग्वेज. तो हम लोग फ्रेमवर्क्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फ्रेमवर्क्स में बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज आती है, ताकि हम लोग मोस्टली लाइक हमारा वेब सर्वर कैसे चलेगा, हम लोग रिक्वेस्ट कैसे लिखेंगे, हमारा सर्वर इंटरनेट से कैसे लाइक इंटरेक्ट करेगा, ये सब हमें देखना पड़ेगा. हम डायरेक्टली अपना लॉजिक लिखेंगे, हमें क्या करवाना है उस एप्लीकेशन से हम लोग वो लिखेंगे. अगर हम डायरेक्ट पाइथन यूज़ करते हैं तो हम लोग को बनाना पड़ता है कि लाइक हम लोग को पहले सर्वर कोड करना पड़ता है कि ताकि हम लोग इंटरनेट से अपना एप्लीकेशन एक्सेस कर पाएँ. हम लोग को रिक्वेस्ट मॉड्यूल्स लिखने पड़ते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज खुद से लिखनी पड़ती. तो फ्रेमवर्क्स हम बेसिकली इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास मोस्ट ऑफ द थिंग्स इंक्लूडेड रहे, एंड बस हम लोग फोकस कर पाए इन द डेवलपमेंट पार्ट ओनली. सिमिलरली एक ऐसा ही पाइथन फ्रेमवर्क है जैंगो, हम अभी क्लास करेंगे, बट जैंगो इज़ अ फ्रेमवर्क जिसे बैटरीज इंक्लूडेड कहा जाता है. क्यों? बिकॉज उसमें अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड, लाइक उसमें बहुत सारे बॉयलर प्लेट सिमुलेट होते हैं, क्योंकि हमें बस उसमें लिटिल बिट ऑफ लॉजिक ऐड करना होता है, एंड बहुत सिंपली एपीआईज बन जाती है. बट हम लोग थोड़ा सा क्लास में जाएंगे क्योंकि जैंगो कैन बी अ बिट ओवरवेलमिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारा कोड पहले से होता है, एंड फ्लास्क में हम लोग को मोस्टली कोड खुद लिखना पड़ता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेमवर्क्स. अगर किसी को कुछ समझ नहीं आता है, सो दे कैन पोस्ट इट ऑन द चैट सेक्शन और टर्न ऑन योर माइक एनी टाइम. सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेमवर्क्स. हम इसीलिए फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है पहले से, ताकि हम लोग डायरेक्टली अपना डेवलपमेंट पार्ट में फोकस कर पाएँ. एंड व्हाट अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट? फ्रेमवर्क्स हो गए हमारे पास, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, बैक एंड के फ्रेमवर्क्स है, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं. सो हमें बैक एंड की नीड क्यों पड़ी जब हमारे पास फ्रंट एंड है? तो अगर किसी ने वेब पेज ही बनाया होगा यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो उससे पता होगा कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बहुत मिनिमल लॉजिक लगा सकते हैं, लाइक हम लोग एडिशन कर सकते हैं, कुछ कुछ बहुत छोटे ऑपरेशन लगा सकते हैं लॉजिकल साइड वाले. बट वो भी आपके फ्रंट एंड, लाइक आपके जब बेसिकली जब हम कोई वेब पेज रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसका जो भी कंटेंट होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट वाला, वो हमारे लोकल सिस्टम पे आता है, उसे ब्राउज़र रेंडर करता है. ब्राउज़र में बहुत सारे इंजन्स होते हैं, वो उसे सेटअप करता है अपने ब्राउज़र में, एंड फिर हम लोग उसे देख पाते हैं. तो बेसिकली अगर हम कोई लाइक सपोज हम वहाँ पे कैलकुलेटर हमने एक्सेस किया, कोई ऑनलाइन कैलकुलेटर, उसमें 2+5 किया, तो वो 2+5 वो उतना जावास्क्रिप्ट से हो जाएगा. बट से हमें कोई बहुत सारा डेटा में कंप्यूटेशन करना हो,
बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म करनी हो, हमें लाइक सपोज जो ई कॉमर्स एप्लीकेशंस होते हैं उसमें बहुत सारी एमएल एल्गोरिदम्स इन्वॉल्व होती, ताकि वो आप लोगों को यूज़र का रिटेंशन ले पाए, कि यूज़र बार बार देखे कि हम उसके हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये सब के लिए बहुत सारी एल्गोरिदम्स काम करती है जो हम लोग फ्रंट एंड पे नहीं काम करवा सकते। सो दैट्स व्हाई वी इंक्लूड अ बैक एंड पार्ट ऑफ इट जो कि सर्वर पे चलता है। जो फ्रंट एंड पार्ट होता है वो हमारे ब्राउजर पे आके लोड होके हमें डिस्प्ले होता है। फिर जैसे ही हम लोग कोई भी चीज़ क्लिक करते हैं तो वो वैसे वैसे लोड होता जाता है। लाइक सर्वर से रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का ये साइकिल होता है। हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमको ये प्रोडक्ट देखना है, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर लोड करेगा अबाउट दैट प्रोडक्ट। से मैंने फ़ोन के लिए देखा तो मैंने स्विच के सपोज रेडमी का मुझे सपोज ए मॉडल अच्छा लगा, तो फिर बैकएंड के पास रिक्वेस्ट जाएगी, बैकएंड उस ए मॉडल का फ़ोन की इन्फॉर्मेशन भेजेगा कि लाइक इसका इतना कॉस्ट है, इसमें इतने लोगों ने परचेज किया है, उसका ये यूज़र रिव्यू है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, कि हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एंड जो सर्वर है हमें उसका रिस्पॉन्स भेज रहा है। सो हमें इसलिए बैकएंड की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपना लॉजिक लिख सकें बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन का। सो दैट वाज अबाउट बैकएंड एंड आई होप ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो यू कैन आस्क इट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एपीआईज। सो एपीआईज बहुत लोगों ने बहुत बार सुना होगा, एपीआईज लिटरेसी बहुत चलती है, बट एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि बैक एंड डेवलपमेंट में एपीआईज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। कैसे? क्योंकि हम सपोज जैसे ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, ठीक है, अब वो फ्रंट एंड से उठ के हमारे पास आ गया उसका फ्रंट एंड पार्ट, उसका बैक एंड पार्ट कहीं और रखा हुआ है। तो अब ये दोनों कन्वर्सेशन कैसे करेंगे? जस्ट अ सेकेंड, एम आई ऑडिबल? Yes, you are. सो बात ये है कि हमारा फ्रंट एंड तो हमारे लैपटॉप में आ गया है, हमारे ब्राउजर पे आ गया है, ब्राउजर पे लोड हो गया है। हमारा बैक एंड कहीं और हमारे सर्वर पे रखा हुआ है, पता नहीं सर्वर लाइक हो सकता है कहीं अमेरिका में होगा, हो सकता है कहीं पे दिल्ली में होगा, मैं कहीं और बैठा हूँ, हमारा सर्वर कहीं और है। तो वो दोनों कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? अब वो कम्युनिकेशन करेंगे थ्रू एपीआईज। कि सपोज हमारे पास एक एपी, हमारे पास फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड में हम पीछे लाइक कैसे बताऊँ मैं, HTML में एम्बेडेड होती है एपीआईज का रिक्वेस्ट। तो जैसे हम क्लिक करते हैं एपीआई कॉल जाती है सर्वर के पास, सर्वर फेच करता है उसका डेटा, क्योंकि एपीआई कॉल में वो डेटा बेसिकली आ जाएगा कि उस यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट किया है, उस यूज़र ने फ़ोन रिक्वेस्ट किया, उस यूज़र ने क्या जो भी रिक्वेस्ट किया, लैपटॉप रिक्वेस्ट किया है। क्योंकि एपीआई हाईली कस्टमाइजेबल होती है, हम एपीआई जैसे बिल्ड करते हैं कि उसको हम लोग ग्रेटर एक्सटेंट तक कस्टमाइज कर पाएँ। तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, अब सर्वर ढूंढता है एंड उस हिसाब से वो अपना रिस्पॉन्स फॉर्मेट करके हमें वापस रिटर्न करता है। तो इसलिए इट्स रिक्वायर्ड कि हम कॉन्वर्सेशन कर पाए बिटवीन एप्लीकेशंस, बिटवीन आर्किटेक्चर्स, बिटवीन सर्वर्स, हम कन्वर्सेशन कर पाएँ। तो इसके लिए वी नीड एपीआईज। सो एपीआईज में द फुल फॉर्म इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, सो एप्लीकेशन इज जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। सपोज इसमें हम एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब लाइब्रेरी में क्या क्या होता है? लाइब्रेरी में होता है यूजर्स होते हैं, लाइब्रेरी में होती है बुक्स, एंड लाइब्रेरी में होता है लेट्स से क्या ले सकते हैं, लाइब्रेरी में होता है स्टाफ, ठीक है। अब यूजर को बुक्स चाहिए, स्टाफ होता है एक, एंड बुक्स वाला एक। हम तीन एप्लीकेशन एज्यूम करते हैं एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब मॉडर्न डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो हम बेसिकली ये तीनों पार्ट एक ही एप्लीकेशन में नहीं बिल्ड करेंगे। हम एक बनाएंगे यूजर मैनेजमेंट सिस्टम, हम एक बनाएंगे स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम, हम एक बनाएंगे बुक्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसका एडवांटेज क्या है कि हम ये तीन टुकड़ों में बना रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ये है, सपोज कभी कोई ब्रेक आता है किसी एप्लीकेशन में, कोई एरर है, ठीक है, तो अगर हम तीनों ये एक साथ बनाते तो सपोज बुक वाले एप्लीकेशन में एरर होता पर वो दिखाता यूजर्स वाले में, तो हमें डीबग करने में, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने में कि कहाँ ब्रेक्स आ रहे, कहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, ये फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कि अभी पहले हम यूज़र चेक करें, क्या पता यूज़र में एरर हो, फिर स्टाफ देख रहे हैं, फिर लास्ट में बुक में पहुंच रहे हैं। उससे अच्छा हम इन तीनों को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिससे कि हम बेसिकली बहुत अच्छे से देख पाएंगे कि हमारे तीनों मॉड्यूल छोटे छोटे हैं। इंजीनियरिंग टीम जो भी होगी, जो कोड डेवलप कर पाएगी, उससे भी इजीली एक्सेसिबल होगा कि ठीक है ये पार्ट यूज़र वाला है तो यहाँ पे फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि अभी यूज़र एप्लीकेशन डाउन हुआ है। तो हम बेसिकली बहुत आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आई है। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तीन एप्लीकेशन है, ओके, एंड जो उसका प्रोग्रामिंग पार्ट होगा उसमें हम लोग बेसिकली डिफाइन करेंगे उसका बिजनेस लॉजिक से। जैसे मैं एज यूजर हूँ, मुझे चाहिए पाइथन की बुक, ठीक है, तो मैं पहले लॉगिन करूंगा, तो पहले यूजर्स वाला मॉड्यूल चेक करेगा कि हाँ ये बंदा
ऑथेंटिकेटेड है, ये हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड है। मतलब अब वो चेक कैसे करेगा, वो जाएगा मेरी रिक्वेस्ट लेगा, मेरी रिक्वेस्ट में क्या क्या उसके पास जाएगा, मेरा यूजर नेम जाएगा, मेरा पासवर्ड जाएगा कि सही यूजर नेम है, सही पासवर्ड है। अब वो डेटाबेस पे चेक करेगा, हाँ ये पासवर्ड सही है, यूजर नेम सही है। तो ये एक पार्ट हो गया लॉजिक का, कि वो लॉजिकल माइंडसेट से देखेगा कि हमने सही चीज़ें दी है कि नहीं दी है। तो ये उसका प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया, हमारे एप्लीकेशंस का ये प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया। अब आते हैं थर्ड वर्ड पे, जो कि होता है इंटरफेस। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का जो थर्ड वर्ड होता है इंटरफेस, जैसे हमने अभी 3 मॉड्यूल्स बनाए, लाइक एक एप्लीकेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को, एक है हमारा बुक्स, स्टाफ, यूजर्स। अब ये हुआ कि मैंने रिक्वेस्ट की बुक के लिए, पाइथन वाली बुक के लिए, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट गई से यूजर वाले के पास कि अब यूजर बताएगा कि मैं असली यूजर हूँ कि नहीं, मैंने सही क्रेडेंशियल्स एंटर किया है कि नहीं। चलो वहाँ से सक्सेस हो गया। अब वो क्या करेगा, वो एक एपीआई कॉल करेगा टू द बुक्स पार्ट। तो ये क्या हो रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कि अगर ये सच्चा, मतलब ये सही यूजर है तो तुम मुझे रिक्वेस्ट भेजना कि इसको क्या चाहिए। वो रिक्वेस्ट जाएगी बुक्स वाले मॉड्यूल के पास कि अच्छा इसे पाइथन वाली बुक चाहिए। अब वो बुक्स वाला मॉड्यूल ढूंढेगा कि हमारे पास पाइथन बुक अवेलेबल है कि नहीं। अब वो देखेगा, अब वो अपना लॉजिक लगाएगा कि कैसे भी पाइथन वाली बुक सर्च करेगा, वो देखेगा अवेलेबल है कि नहीं है तो कौन सा एडिशन है, नहीं है तो कब अवेलेबल होगी, जो भी हमको प्रोवाइड करना है यूजर को डेटा, वो अपना कंप्यूटेशन करेगा एंड देन वो वापस एक एपीआई कॉल करेगा जो डेटा उसने गैदर किया है, ठीक है। अब वो वापस उस डेटा को थ्रू एन एपीआई सेंड करेगा वापस टू द यूजर। तो ये एक एपीआई का काम होता है। एपीआई हमें लाइक कम्युनिकेशन करने में हेल्प करती है, बेसिकली कम्युनिकेट्स बिटवीन एन एप्लीकेशन। तो इसमें ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, जैसे इंटरफेस अगर हम देखें तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 एप्लीकेशंस एज हाउ द टू विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, क्योंकि सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि मैं गलत रिक्वेस्ट मार रहा हूँ, फिर बिना ऑथेंटिकेशन के रिक्वेस्ट मार रहा हूँ कि मैं यूजर हूँ ही नहीं लाइब्रेरी का और मैं रिक्वेस्ट मार रहा हूँ डायरेक्ट बुक एप्लीकेशन में, तो दैट इज अ रॉन्ग वे। तो हम लोग सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं इसमें, ताकि सब कुछ बेटर तरीके से काम करता रहे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ एपीआई। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क, या कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आया या कुछ हम लोग क्यों कर रहे हैं, सो यू कैन आस्क इट। ओके कूल। सो बेसिकली ये होता है API का टेक्निकल डेफिनेशन, दैट इज APIs are mechanisms that enable 2 or more software applications to communicate with each other using a set of definitions and protocols. So basically हमें protocols follow करनी है, हमारी जो guidelines है वो हमें follow करनी है। So an API architecture is usually explained in terms of client and server, कि client request करेगा and server respond करेगा। जैसे कि ये हमने ये किया था कि लाइक क्लाइंट भेज रहा है यूजर को, लाइक मैं असली यूजर हूँ कि नहीं, मैं ऑथेंटिकेटेड यूजर हूँ कि नहीं। तो मेरा क्लाइंट सिस्टम था, मैं हूँ क्लाइंट एंड सर्वर कहीं पे रखा हुआ है, सपोज कोई गूगल का सर्वर है, मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। सो द एप्लीकेशन sending the request is called the client application, client server, and the application sending the response is called the server. So ये होता है हमारा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स साइकिल इन एन एपीआई। जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो होता है क्लाइंट, जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो होता है सर्वर, विच इज इन अ रिमोट लोकेशन, कहीं भी हो सकता है वो वर्ल्ड पे। तो अब एडवांटेजेस क्या है, लाइक हम एपीआई इंक्लूड करते हैं, लाइक हमारे पास हम कुछ और भी कर सकते थे, बट एपीआई का एडवांटेज क्या है। सो एपीआई हेल्प अस अचीव मॉड्यूलैरिटी वाइल डेवलपमेंट। अब मॉड्यूलैरिटी क्या होती है, जैसे हमने एक एप्लीकेशन लिया जो हमारा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम था, तो एक टर्म होती है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। तो जैसे मैंने बताया था कि अगर हम सारे ये तीनों तीनों पार्ट्स को, लाइक यूजर, स्टाफ एंड बुक मैनेजमेंट सिस्टम को अगर हम एक ही एप्लीकेशन में बना दे, लाइक एक पूरा बना दे, ठीक है, तो ये होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। अब वो टाइटली कपल्ड होता है, अगर कहीं एरर आएगा तो हम कभी देख नहीं पाएंगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम होगी उसमें एरर्स लाइक सॉल्व करने में, कि कहाँ पे ब्रेक्स आए हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है। तो ये होता है टाइटली कपल्ड आर्किटेक्चर, जो बहुत मतलब जुड़ गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे सपोज कोई फीड यूज मॉडल जोड़ना है उसमें, तो अब मैं चेंजेस करूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा, क्या पता मैं यहाँ चेंजेस कर दूँ तो यहाँ ब्रेक्स ना आ जाए। अगर मैं इसको एपीआई के थ्रू करना चाहूँ तो मैं बेसिकली एक एपीआई बनाऊंगा, एक लिंक बनाऊंगा और उसको जोड़ दूंगा। वो बहुत ईजी टास्क पड़ेगा मेरे लिए, इंस्टेड ऑफ कि मैं पूरा एक बड़ा सा आर्किटेक्चर बना दूँ। सो ये है चीज मॉड्यूलैरिटी। लाइक इसमें कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क। एंड ऑल्सो यूजिंग प्री बिल्ड इकोसिस्टम्स फॉर टू फॉस्टर इनोवेशन। तो अब क्या होता है, जैसे गूगल है, अगर किसी ने फायरबेस सुना होगा या यूज़ किया होगा, तो अगर जैसे तुम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, जैसे गीक्स फॉर गीक्स एक्सेस कर रहे हो, ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स सब में एक्सेस किया होगा, तो अब वहाँ पे कभी कभी आता है लॉग इन विद गूगल या फिर साइन अप विद गूगल। तो वो कैसे आता है, अब ऐसा तो है नहीं कि लाइक वो कोई गूगल का फिर से इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, नहीं। अब वो क्या कर रहे हैं, गूगल ने अपना एक इकोसिस्टम बना दिया है
उसमें वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसके पास बहुत सारा डेटा है। तो अब वो क्या करता है, वो अपनी सर्विस देता है कि तुम उसके आर्किटेक्चर को यूज़ करके तुम लॉगिन वाली सर्विस इंक्लूड कर सकते हो। तो अब हम गूगल से लॉगिन वाली सर्विस हम उतना उसको पे कर देंगे गूगल को, एंड उससे सर्विस ले लेंगे। एंड ये प्री बिल्ट इकोसिस्टम हम एक एपीआई के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको बहुत सारे कुछ कोड, हमको बस बेसिकली एक पैराग्राफ लाइक 4 to 5 लाइन्स ऑफ कोड बस ऐड करना पड़ता है, एंड वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम वो लॉगिन विद गूगल आपके एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। तो ये होता है कि यूजिंग प्री बिल्ट इकोसिस्टम टू फॉस्टर इनोवेशन। तो हमको बार बार जो रिपीटेटिव टास्क नहीं करना पड़ रहा है, हम बेसिकली जो पहले से लोगों ने बना के रखा है हम उसको यूज़ कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम अपने ही सब कुछ बना लें, क्योंकि हमारे पास डेटा की भी कमी है। अब हम वो सब बनाने बैठेंगे तो वो टाइम लेगा, सो हम ये कर सकते हैं। सो दैट इज इसके टू एडवांटेजेस हो गए, अचीव मॉड्यूलरिटी वाइल डेवलपमेंट एंड यूजिंग प्री बिल्ट इकोसिस्टम्स टू फॉस्टर इनोवेशन। एंड जो थर्ड है मैनेज सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। सो एपीआई मैंने बोला था जो फ्लेक्सिबल होते हैं, एपीआई से हम जैसे कि बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स भी ले सकते हैं कि लाइक ये यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं, हम बस एक एपीआई कॉल से एक्सेस कर सकते हैं, एंड किसे कितना एक्सेस देना है ये सब हम सब एपीआई से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि एपीआई बहुत फ्लेक्सिबल होती है। लोग बहुत इजीली बहुत लाइक नॉमिनल एपीआई डेवलप कर सकते हैं बहुत मिनिमल अमाउंट ऑफ कोड के साथ। सो दैट वाज अबाउट एपीआईज। And does anyone have any doubt with this? So please let me know, क्योंकि now we are the code part. So अगर यहाँ पे clear है तो we can move for the code part also. Okay, cool. So एक बार बता सकते हो कि सब कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, एंड सबके पास पाइथन इंस्टॉल्ड है कि नहीं है? Okay, Windows I can see. ओके, वन फॉर लिनक्स, मेरा भी लिनक्स है, बट मैं सारे विंडोज़ वाले कमांड अगर जो भी होगा मैं उसको ट्रांसलेट कर दूंगा। एंड ऑल्सो कौन कौन अभी कोड कोड अलोंग कर सकता है, लाइक मैं कोड करूंगा एंड उससे कौन कौन साथ में करेगा कोड अलोंग करना चाहता है? सो एक बार वो भी बता दो। ओके, आई गॉट 2 हैंड्स, 3 हैंड्स, 4। सी अगर कोड अलोंग कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर एरर्स आएंगे तो तुम अभी लाइक उनसे सीख सकते हो। लाइक अगर कोई डाउट आएगा एरर, या फिर तुमको कल तक का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो कि कल के सेशन में तुम डाउट यूज कर सको। सो ट्राई करना कि मोस्ट ऑफ द लोग कोड अलोंग कर पाओ, एंड कुछ भी एरर आए तो उसको सॉल्व कर पाओ। सो मैं स्क्रीन स्टॉप करता हूँ एंड वी एस कोड होगा ना शायद सबके पास? वी एस कोड होगा तो अच्छा होगा। यूज कर सकते हो, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो ट्राई करो कि एटलीस्ट तुम कोड कहीं पे लिख लो, लाइक कोई फाइल्स में लिख लो, टेक्स्ट फाइल में लिख लो, इसको बाद में कन्वर्ट कर लो। एंड विम में ट्राई करना कि मत करो, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ऑटो सजेशन वो सब नहीं मिलेगा तुमको, सब कुछ मैनुअली करना पड़ेगा, और कोई एरर आएगा तो तुमको तुरंत पता नहीं चलेगा। सो दैट वाज ऑल। एंड एक बार कोई माइक ऑन करके बता दो कि स्क्रीन दिख रही है क्या? Yes, it's visible. ओके, कूल। सो देखो, ये हमारा पूरा फ्लास्क एप्लीकेशन है, मतलब हमारी जो मेजर फाइल है दैट इज द app.py फाइल। साइज अभी सही से दिख रही होगी शायद। सो हमारी जो मेजर फाइल है वो app.py फाइल एंड दिस requirements.txt फाइल। तो मैं रिक्वायरमेंट्स का दे देता हूँ। सो इस लिंक पे जाना एंड एक फाइल ओपन होगी, मैं दिखा देता हूँ। ये जो फाइल है इसके सारे कंटेंट्स कॉपी करना, एंड अपने VS कोड में ऐसी फाइल बनाना requirements.txt, एंड इसमें पेस्ट कर देना, एंड लेट मी नो जब ये काम हो जाए। लाइक इट विल बी गुड अगर माइक्स ऑन कर लो तो जल्दी हो जाएगा। सो ऐसे लेके एक बार पेज कर लेना, एंड बेसिकली ये 2 फाइल्स बना लेना, बाकी दोनों बस मैं दिखाने के लिए रखी है, समझाने के लिए। एंड ये 2 ऐप रिक्वायरमेंट
एंड ये बनाकर मुझे जल्दी से बताओ सबको। इसे टाइप मत करना, टाइप करने में टाइम लगेगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना सीधे डायरेक्ट। Can you please repeat? जस्ट अ सेकंड। सो हमारी जो मेन फाइल्स है फ्लास्क एप्लीकेशन के लिए, ये है एक app.py फाइल एंड ये requirements.txt फाइल। सो मैंने अभी चैट में एक लिंक दी है, अगर उस लिंक को खोलोगे तो ये वाला कंटेंट तुम्हें मिल जाएगा। उस कंटेंट को अपने अपने कॉपी करो और इस requirements.txt फाइल में पेस्ट कर दो। लाइक एक फोल्डर बना लेना, उसे खोलना जिस भी टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हो, एंड ये पेस्ट कर देना यहाँ पे डायरेक्टली। और फिर मैं बताता हूँ ये फाइल क्या है। लाइक जल्दी से सब लोग करके बताओ हो गया। हो गया मोस्टली लोगों का। आई गॉट ओनली वन हैंड टिल नाउ। ओके, श्रद्धा का भी हो गया। Cool. So shall I proceed with explaining what this is? ठीक है, तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स फाइल से तुमको पढ़ के पता लग जाएगा। रिक्वायरमेंट्स मतलब जो हमें ये जो एप्लीकेशन लोग बनाने वाले, जो एपीआई बनाने वाले हैं, वो बेसिकली एक एपीआई होगी जो यूज़र में सपोज मैं एक यूज़र हूँ, मेरा मेरा नेम, मेरा ईमेल एड्रेस एंड मेरा पासवर्ड, ये तीनों का CRUD ऑपरेशन मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट करेगी इन अ डेटाबेस। ठीक है, तो अब ये काम करने के लिए हमें जो डिपेंडेंसी चाहिए, जो पाइथन की लाइब्रेरीज चाहिए, जो हमारे पास अभी नहीं है, तो ये वो पाइथन लाइब्रेरीज है। ठीक है, तो जैसे कि एक तो यहाँ पे फ्लास्क की है, हमको फ्लास्क चाहिए क्योंकि हम फ्लास्क एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, एक पाईमोंगो इसका मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी फाइल्स है, मतलब ये बहुत सारे लाइब्रेरीज है जिनको हमको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो अभी क्या करना, अपना ये टर्मिनल खोलना एंड टर्मिनल खोल के ये कमांड लिखना। इस तुम जिस भी क्या बोलते हैं फोल्डर पे तुम सेव कर रहे हो, काम कर रहे हो, उस फोल्डर पे होना चाहिए टर्मिनल, एंड फिर ये कमांड लिखना है। मैं ये कमांड पेस्ट कर देता हूँ पे, एंड फाइल देख लेने पर रिक्वायरमेंट्स अगर तुम चेंज करोगे, रिक्वायरमेंट कर रहे होगे तो उसको उस तरह से चेंज कर लेना। सो व्हेन आई हिट एंटर, ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होना चालू हो जाएंगे, क्योंकि मेरे में सब पहले से थे पैकेजेस, तो अभी फिर से नहीं हुआ, बट ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। लाइक जैसे इसमें फ्लास्क इंस्टॉल हो गया एंड पाईमोंगो भी होगा कहीं पे, पाईमोंगो। सो ये सब पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये हुआ, किसी को कोई एरर आ रहा हो तो बता दो। कूल, ठीक है, ये हो गया ना सबका। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो उस टाइम बता देना मुझे। सो ये तो हो गया हमारा डिपेंडेंसीज का इंस्टॉलेशन। अब हम आते हैं जेसन समझ लेते हैं पहले। जो भी हम लोग एपीआईज में काम करते हैं, ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज़ करते हैं, वो होता है जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। सो ये क्या होता है, ये लाइक एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव फाइल होता है। ठीक है, अब देखो ये तुमको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये यूजर्स मतलब ये यूजर्स का डेटा रखता है। ये बेसिकली अगर पाइथन के लैंग्वेज में देखो तो ये डिक्शनरी है। ठीक है, ये पूरी एक डिक्शनरी है एंड इसका ये की है और ये वैल्यू है, वैल्यू इज अ लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर और डिक्शनरीज है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट इज़ द फॉर्मेट, एंड मैं समझाता हूँ ये क्यों। ठीक है, सो अगर इसको देखें तो तुमको समझ में आ रहा होगा, एक की है, यूजर्स की है, तो इसके अंदर अपन ने यूजर्स का डेटा सेव किया हुआ है। एक जॉन डो यूजर है हमारे पास, एक स्कूपी डू यूजर है, एंड और भी ऐसे यूजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मैं बेसिकली एकदम सिंपल वे में लिखूँ कि यूजर नेम इज जॉन डो,
सपोज अगर हम टेक्स्ट फाइल में काम कर रहे थे, हम टेक्स्ट फाइल में डेटा शेयर कर रहे थे, यूजर नेम इज जॉन डो, ईमेल इज जॉन डो @example.com, ठीक है। तो अब सपोज मैंने इसे इसमें ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है। अब ये टेक्स्ट फाइल है, अगर मैं इसे शेयर करूँ अपने फ्रंट एंड के साथ, तो ये बेसिकली इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इट्स हार्ड कि यूजर नेम इज जॉन डो, अब वो बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी इसमें। अब मैं इसमें से जॉन डो ढूंढ रहा हूँ, इसमें यूजर नेम कहाँ है, इसमें जॉन डो उसका ईमेल कहाँ है, उसका इसमें पासवर्ड कहाँ है। तो ये बेसिकली इसमें बहुत हमें प्रॉब्लम होगी कि हम लोग इसमें अब ढूंढ रहे हैं नाम कहाँ है, ईमेल कहाँ है, पासवर्ड कहाँ है। एंड अगर हम इसमें एक्सेस करें, तो अगर तुम पाइथन अच्छे से अगर थोड़ा बहुत समझते हो, तो हम इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं कि हम इस डिक्शनरी में यूजर्स की ले लेंगे, यूजर के अंदर जो पहली वैल्यू है, पहला जो डेटा है, उसका हमको नेम चाहिए, तो ऐसे करके इंडेक्सिंग हो जाएगी। लाइक हम सपोज इस डिक्शनरी का नाम है, ये सपोज डिक्शनरी है, मैं इसमें से निकाल लूँगा यूजर्स। अब यूजर्स करूँगा तो मुझे ये अभी के लिए ये पूरा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ इसमें से इसका नेम। इसमें मैंने किया, अब मैंने इसमें किया ज़ीरो से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया ये वाली डिक्शनरी। अब मैंने किया इसमें नेम। तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँगा, अगर मैं इसे पाइथन इंटरप्रेटर पे चलाऊँगा, तो मुझे बेसिकली ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो इट इज़ दैट ईजी कि हम जेसन यूज़ करके इसे एक्सट्रैक्ट कर लें ऐसे करके, इंस्टेड ऑफ ये कि हमें इसमें पहले ढूंढना पड़ेगा कि ये कीवर्ड्स कहाँ पे है, इसमें ये कहाँ पे है। सो दैट इज़ अ वेरी हार्ड टास्क। तो हम इसलिए यूज़ करते हैं जेसन, ताकि हम लोग ईजिली डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, हम जो भी डेटा भेजना चाहते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन को। सपोज जो हमारा वो वाला एप्लीकेशन था लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम उसमें इस तरह से भेज सकते हैं अपने बुक्स वाले को कि अच्छा ठीक है, ये बंदा ऑथेंटिकेटेड है, तो इसे सर्व कर दो, इस ईमेल आईडी पे सेव कर लो डेटाबेस से जो भी, ठीक है। तो ये हमारा जेसन फॉर्मेट हो गया। अब देखो ऐप डॉट पाई फाइल मेन पे आते हैं। ये किसी को नहीं समझ में आया तो एक बार बता दो प्लीज़, और अगर क्लियर है तो इट्स गुड, ठीक है। सो अब अगर हम आते हैं ऐप डॉट पाई फाइल में, तो ये हमारी मेन फाइल है जो हम जिसमें हम पूरा एपीआई डिफाइन करेंगे अभी, थोड़ी सी अभी एंड थोड़ी सी कल। तो हम सारे काम इसमें ही करेंगे, एक फाइल में हमारा मोस्टली काम हो जाएगा। तो इसमें से मैंने एक तो फ्लास्क मॉड्यूल ले लिया, फ्लास्क जो हमने अभी इंस्टॉल किया बहुत सारी डिपेंडेंसीज, तो इसमें भी था ये फ्लास्क, इट इज़ दिस नाउ, ठीक है। इसमें से हम लोग फ्लास्क में से एक फ्लास्क निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें से हम रिक्वेस्ट निकाल लेंगे, रिक्वेस्ट हम लोग देखेंगे यूज़ करना जेसॉनिफाई। अब जेसॉनिफाई क्या करेगा, हमारे पास पाइथन में कोई जेसन वाला डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास डिक्शनरी, हमारे पास लिस्ट है, हमारे पास टपल है, सेट है, लेकिन कोई जेसन जैसा ये नहीं है हमारे पास लाइक डेटा स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, No, I guess Shashwat network is interrupted. Okay. Okay, there is some network issue with Shashwat. He will be joining back. So if you guys have any doubt, you all can raise your hands and ask the questions, okay? You can also put your doubt in the chat section. Yes, Darshan Hits, do you have any doubt? You can open your mic and speak. Okay. Once Shashwat is back, you can ask him. I will share that code in the comment section again.
Thank you, Miracle. Yeah, Shash. Sorry for that echo. That happens when you handle two accounts. So yeah, Shashwat will be back in just 2-3 minutes. I guess he is back. Okay. He will be back in just 2 minutes. Till then, I just want to know how you are doing with the programming and stuff. Miracle, are you there? Yes. So how are you doing with your internship? Like currently I'm freelancing. Uh, so So like, like what exactly are you doing? uh, I have certain restaurants for which I am working currently. Like Uh, there are two restaurants like hmm, chains. Okay. So Sanskrit sir is there. So hmm. Yeah, we will discuss about we it can later. carry on. So, Okay. yeah, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, गॉट सम नेटवर्क इश्यूज. सो कहाँ तक सुनिए था, कोई बता सकता है क्या? Shashwat, actually, Darshan has a doubt with that requirement file. Can you please tell him again? ठीक है, शायद ये इसके बिना भी हो जाएगा. लाइक बाकी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हुई होगी शायद. Darshan, are you there? You can ask your doubt. Hello, sir. I'm getting हाय ब्रो. basically dependency error. I बाकी have posted डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड. वो बाकी dependency installed. हेलो. जस्ट अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. तुम्हें ये एरर आएगा, पिप्स डिपेंडेंसी रिजॉल्वर. इज इट विजिबल? Yes, it is. सो अगर तुम्हें ये एरर आया है तो वो ठीक है, बट
इंस्टॉल हुआ भी होगा, और अगर नहीं हुआ है तो ठीक है, लाइक ट्राई करते हैं इसको, सेशन के बाद रिजॉल्व कर लेते हैं। हाँ ओके सर। तो कहाँ तक चलो, तो कोई बता सकता है क्या एक बार? हम अभी फ्लास्क में है, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क रिक्वेस्ट डॉट जेसन। सन क्यों यूज़ करते हैं? स्क्रीन दिख रही होगी शायद। सो जो हमने डिपेंडेंसीज अभी इंस्टॉल की, तो हम उनको ऐसे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फ्लास्क, वील इंपोर्ट द फ्लास्क एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट लाइब्रेरी होगी वो अपन देखेंगे, एंड एक जेसोनिफाई है। सो जेसोनिफाई बस यही करेगा कि जो हमारा डिक्शनरी डेटा होगा हम ऐसे ही फॉर्मेट कर लेंगे, बट जो डेटा होगा उसको बेसिकली जेसन फॉर्मेट में वो अच्छे से सेंड करेगा टू द वेब सर्वर, या जहाँ से हम रिक्वेस्ट करेंगे उसे। सो ये करेगा हमारा ये वाला काम। एंड जो पाईमोंगो होगा, इससे हम लाइक अपने डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे ताकि हम डेटा फेच और उस पर ऑपरेशन कर पाए। एंड ये कुछ और इम्पोर्ट्स है, लाइक वील सी देम। सो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अभी हम लोग इसमें मोंगो यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली किसी ना किसी ने कभी ना कभी सीक्वल डेटा देखा होगा जिसमें कि टेबल्स एंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है डेटा, बट हम लोग इसमें नो सीक्वल डेटाबेस यूज़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत लोग बताते नहीं है, बट इट्स फन यूजिंग नो सीक्वल डेटाबेस। लाइक वो हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे डेटा हो एंड इनकम्प्लीट डेटा हो, लाइक डेटा साइंस वाली फील्ड में हम लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट नो सीक्वल इज़ ऑल्सो फन, तो एक बार मैं दिखाता हूँ उसे भी, एंड फॉलो अलोंग करना, क्योंकि उसमें आईडीज क्रिएट करनी पड़ती है, तो एक बार समझ में आ जाएगा वो। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस। हाँ। तो तुम जब जाओगे इंटरनेट पे मोंगोडीबी लिखोगे, कोड अलोंग करके जाना, मोंगोडीबी वाली साइट पे जाना। यहाँ पे तुम्हें ट्राई फ्री का ऑप्शन दिखेगा। सो बेसिकली मोंगोडीबी में बस एक क्लस्टर यूज़ करने का फ्री ऑप्शन देता है, वो अपन बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें मैं साइन अप विद गूगल कर लूँगा, ये कर लेना वो। आई होप सब फॉलो कर रहे होगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ बताना एक बार। सो ऐसे हमारा ये आएगा, इसमें कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, लाइक लर्न मोंगोडीबी एंड न्यू टू मोंगोडीबी, ठीक है। इसमें सिलेक्ट कर लेना जो भी ऑप्शन आएगा। मेन चीज़ कि जो दे रहा है मोंगोडीबी, इसमें ये ज़ीरो फ्री वाला चूज़ करना। फ्री लिखा होगा, इतनी स्टोरेज मिलती है हमको फ्री वाले में, एंड इसमें कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर अपन AWS चूज़ करते हैं, लाइक AWS, वो सब इतना मत सोचना, बस हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। सो ये फ्री टियर यूज़ करना, प्रोवाइडर में AWS ले लेना, एंड इसमें मुंबई ले लेना, ठीक है। तो हमारा डेटा थोड़ा जल्दी ट्रैवल करेगा। क्लस्टर 0 इज़ ओके, एंड क्रिएट कर देना यहाँ पे। एंड किसी को प्रॉब्लम हो तो इसमें बताना। यहाँ तक सब फॉलो कर रहे हो?
जब तुम यहाँ पहुँच जाओगे तो इसमें सिलेक्टेड रहने देना, सब सारे डिफ़ॉल्ट यूज़ करना है, लाइक ये भी ठीक है, इसको मैं ऑटो जनरेट कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा, यहाँ क्रिएट यूज़र कर देना, ठीक है। तो तुम्हारा एक ये यूज़र बन गया और एक रूट, ये तुम्हारा मन है तुमको करना होगा, बाकी ये दोनों यूज़र हमारे पास बहुत है, ठीक है। एंड इसमें ऐड माई करंट आईपी कर देना, तो ये एडेड ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ताकि हम मतलब मेरा डेटाबेस तुम लोग ना यूज़ कर पाओ, बस इसमें मेरा ही कनेक्शन अलाउड होगा, क्योंकि अगर मैं तुम लोग को एक्सपोज कर देता हूँ कि मेरा पासवर्ड यूज़र नेम क्या है, फिर भी सिर्फ मैं ही इसे एक्सेस कर पाऊँगा। सो ये सब बेनिफिट्स है MongoDB यूज़ करने के। एंड यहाँ तक अगर सबने कर लिया तो फिनिश एंड क्लोज कर देना, ये क्रिएट हो जाएगा। सो बस इतना ही था, यहाँ तक हमारा क्लस्टर क्रिएट हो गया, लाइक एक सर्वर हमें एलोकेट हो गया है जहाँ पे अपना डेटाबेस बना सकते हैं। अब जाना ब्राउज कलेक्शंस पे, अब डेटाबेस नेम ले लो, सपोज यूजर जो भी तुम लेता हो सकते हो, यूजर डेटा एंड कलेक्शंस हम लोग ले लेंगे, सपोज यूजर कलेक्शन। ट्राई करना कि फॉलो कर लो, ठीक है। तो हमारा एक यूज़र डेटाबेस बन गया है एंड उसके अंदर कह सकते हो कि यूज़र टेबल जैसा बन गया, इसमें टेबल्स नहीं होता, इसमें होता है कलेक्शंस। तो हमारे यूज़र डेटाबेस में यूज़र कलेक्शन बन गया है, ओके। सो अब जैसे अगर इससे हमें कनेक्ट करना हो, तो यहाँ पे जाना, ये याद रखना है कि जो तुम डेटाबेस है उसका ये सब नाम लिख रहे हो, ये सब याद रखना। सो यहाँ पे आ रहा है कनेक्ट बटन, ठीक है। तो इससे जब क्लिक करोगे इस पे, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इससे कॉपी कर लेना। और तुमने एक यूज़र नेम और पासवर्ड जो क्रिएट किया था ना, इसे मैं लिख के दिखाता हूँ वहीं पे। इसे मैंने किया कॉपी, मैंने थोड़ा टेक्स्ट एडिटर, ये पेज किया, ठीक है। अब सपोज मेरा यूज़र नेम था शाश्वत गुप्ता और पासवर्ड था, ये था मेरा पासवर्ड, और डेटाबेस एक्सेस कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन होगा हमें ये लिंक चाहिए, ठीक है। सो अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम आई हो तो बता दो, एंड इस लिंक को थोड़ा सेव करके रखना अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। किसी को प्रॉब्लम आई हो तो बता सकता है। या कुछ समझ नहीं आया क्यों कर रहे कौन सा स्टेप, तो कुछ भी हो तो बता दो एक बार, और कर रहे हो गया तो भी बता दो। अभी बताओ अगर हो रहा है तो। हाय शाश्वत। ठीक है, तो इसे सेव करके रखो। हाँ अंकिता, वो डेटाबेस डिप्लॉयमेंट के बाद में क्या करना, एक बार रिपीट कर सकते क्या? एक बार स्क्रीन दिखा दोगे अपनी? हाँ हाँ। ओके, विजिबल है क्या? हाँ विजिबल है। इसमें जाना ब्राउज कलेक्शंस पे, एंड नीचे जाना थोड़ा सा, ऐड माई ओन डेटा। अब इसमें कोई डेटाबेस का नाम दे दो, जैसे मैंने यूज़र दिया था, और कलेक्शन नेम में यूज़र कलेक्शन दे सकते हो, यूज़र कलेक्शन। और केसिंग ये सब याद रखना, क्रिएट कर दो। ठीक है, अब वापस ओवर निकलेगा। ओवरव्यू वहाँ पे क्लस्टर 0 के नीचे दिखा रहा है। हाँ कनेक्ट दिख रहा है?
हाँ कनेक्ट करो, ड्राइवर्स में जाना, अच्छा और ये स्ट्रिंग कॉपी कर लो, वहाँ पे लिखा है ना MongoDB अंकिता, वो पूरी स्ट्रिंग कॉपी कर लो। हाँ ये कॉपी करके किसी टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट कर देना, एंड जो पासवर्ड वाला है ना एंगल ब्रैकेट के साथ, वो रिप्लेस करके अपना पासवर्ड भी बनाया, ओके ओके ठीक है। और इसे सेव रखना भी है, एंड किसी और को प्रॉब्लम हो तो बता सकता है एक बार एल्स। ठीक है, तो मैं प्रोसीड करता हूँ, जब तक कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बता देना। तो अब मेरा ये तो हो गया, ठीक है। ये सब इंपोर्ट्स लिख लो जैसे मैंने लिखे यहाँ पे app.py फाइल में। यू गाइस डोंट नीड दीज टू फाइल्स, सो इन दोनों के बिना बस app.py फाइल एंड रिक्वायरमेंट फाइल ही चाहिए। एंड ये वाली लाइन मत लिखना, .env, ये अलग है। सो अब कंटिन्यू करते हैं, इसके बिना ये सारी लाइंस लिख लेना एंड यहाँ से कंटिन्यू करना। सो पहले हम लोग अब क्या करेंगे, अपने डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो सपोज मैं ले लेता हूँ वेरिएबल कनेक्शन, कनेक्शन इज इक्वल टू जो तुमने ये स्ट्रिंग लिया ना, यहाँ पे ये स्ट्रिंग कॉपी करना और पेस्ट कर देना और कोड्स लगा देना, क्योंकि पाइथन में स्ट्रिंग चलती है, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, ये लगा देना। I'm sorry to interrupt, but I guess someone is having a doubt in creating the database. Okay, just a second. Please share your screen. ऊपर दिखा दो, वहाँ जहाँ भी बस गए। Darshan, are you sharing it? Hello, sir. Hey, please try to share your screen. Okay, I shared. Okay, अब ब्राउज कलेक्शंस पे जाना उसमें। वापस ब्राउज कलेक्शंस। वहाँ पे ऐड माई ओन डेटा कर लो, ऐड माई ओन डेटा Okay. एंड डेटाबेस नेम ले लो यूजर एंड कलेक्शन ले लो यूजर कलेक्शन एंड क्रिएट कर दो। स्पेस मत दो, उसमें स्पेस मत दो। अब ओवरव्यू लिखा है, ओवरव्यू पर जाना Okay, sir. और कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, ओवरव्यू पे जाना। सो वही करना, पहले उसमें जाना, एक बार कनेक्ट कर लेना एंड वो स्ट्रिंग कॉपी कर लेना।
सो उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो अब ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बना लिया है, ठीक है। इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ ताकि याद रहे कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है। तो मेरे डेटाबेस का नाम था यूज़र, ठीक है। तो डेटाबेस लिख दूँगा मैं, जस्ट अ सेकेंड। मैंने लूँगा यूज़र एंड डेटाबेस कलेक्शन ले लूँगा मैं, जो मैंने यूज़र कलेक्शन लिया था। ये मेरा कैपिटल यू था, डेटाबेस यूज़र कलेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा था डेटाबेस एंड ये मेरा था यूज़र कलेक्शन। सो ये मैं से ले लूँगा। तो ये होता है कि जो मेरा ये डेटाबेस था जो मैंने अभी बनाया, उसके अंदर एक डेटाबेस है। किसी ने कुछ कहा था क्या? Your screen is not visible. Is it now? No. Wait. अभी देख लो शायद। Yes, now it is visible. सो क्या करना, ये जो पेस्ट कर लिया था, इसके बाद एक डेटाबेस वेरिएबल लेना एंड इसमें जो तुमने डेटाबेस का नाम लिया था MongoDB में आईडी क्रिएट करते टाइम, वो ले लेना एंड उसके बाद ये ले लेना, ठीक है। क्योंकि इस डेटाबेस में हमारे पास ये वाला यूज़र कलेक्शन है, तो हमको ऐसे इंडेक्सिंग करना पड़ता है। तो ये तुम्हारा कलेक्शन आ जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम एक बनाएंगे क्लाइंट, जो हम हैं, ठीक है। क्लाइंट बनाने के हम लेंगे मोंगो क्लाइंट, मोंगो से मोंगो क्लाइंट कनेक्शन कर लेंगे। तो मोंगो क्लाइंट कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे उसे कनेक्शन स्ट्रिंग अपना, उसे बताएंगे हमें किससे कनेक्ट करना है। कनेक्शन स्ट्रिंग देके फिर डेटाबेस इज इक्वल टू क्लाइंट डेटाबेस एंड कलेक्शन इज इक्वल टू डेटाबेस दी कलेक्शन। इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, तो अगर कन्फ्यूजन ना हो फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हमने एक वेरिएबल लिया जहाँ पे हमने डिफाइन किया कि हमारा ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जो हमने बनाया था, और इससे क्या होगा, हम उस डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। इसके बिना हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है, और ये तुम्हें बस दिख रहा है, बट इन जनरल अगर मैं कुछ डेवलप करूँगा तो ये प्राइवेट रहेगा। सो मैं कनेक्शन स्ट्रिंग ले लूँगा, मेरे डेटाबेस का नाम था यूज़र एंड डेटाबेस कलेक्शन का नाम था यूज़र कलेक्शन, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देना क्योंकि हम इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट लूँगा MongoDB से कनेक्ट करने के लिए, और वहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँगा कि MongoDB मुझे इससे कनेक्ट करना है। तो ये बेसिकली कनेक्शन वहाँ से इंटरनल लाइब्रेरी से कनेक्ट कर देगा। एंड हमारे डेटाबेस का नाम, ये डेटाबेस है, ये जो डेटाबेस हाईलाइट हुआ है यहाँ पे, ये हमारा डेटाबेस का नाम है, और ये हमारे कलेक्शन का नाम है, यूज़र कलेक्शन। तो ऐसे करके हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं, पूछो प्लीज़। एंड अगर यहाँ से क्लियर है तो वील स्टार्ट विद राइटिंग आवर API। तो पहले हम लोग बनाते हैं गेट यूज़र की, हम लोग को जो भी डेटा उसमें सेव है तो हम लोग को बस डेटा फेच करना है। तो हम लोग पहले एक बनाएंगे पाइथन फंक्शन बनाएंगे, डिफाइन करेंगे गेट यूज़र फंक्शन,
यूजर्स फंक्शन, क्योंकि जितने भी सारे होंगे डेटा वो एक बार फेच कर लेगा ये। इस यूजर फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक यूजर्स वेरिएबल लेंगे, एंड हमने यूज के डिफाइन तो कर दिया कि ये यूजर फंक्शन ये करेगा, ठीक है। एक बार इसे हम प्रिंट कर लेते हैं, तो हमने यूजर फंक्शन एक्सेस कर लिया। मैंने बेसिकली क्या किया, अगर किसी समझ नहीं आ रहा होगा तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया गेट यूजर्स, जो क्या करेगा हमारे कलेक्शन में जितना भी डेटा है वो सारा लेके आएगा, उसे एक लिस्ट में कन्वर्ट करेगा एंड प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इसे रन करूँ, सो लेट्स मेक क्वेश्चन आस्क सर सेम एरर आ रहा है। इट वाज नॉट ऑडिबल जो भी तुमने बोला। सेम एरर ही आ रहा है, फॉरवर्ड रेफरेंस वाज नॉट एन एक्सप्रेशन। अब जस्ट अ सेकंड, अभी नहीं आया। ये वाला पार्ट मत करना जो मैं भी कर रहा हूँ, ये बस मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ। फॉरवर्ड एक्सप्रेशन, हाँ देखो यहाँ पे डेटा फेच हो गया एपीआई से, मतलब एपीआई नहीं, बस एक फंक्शन है जो डेटा वहाँ पे उसने लेके आया। लाइक मेरे डेटाबेस में भी 2 आईडी स्टोर्ड है, 3 आईडी स्टोर, 3 चीज से स्टोर्ड है, तो ये बस उतना। सो ये था। अब बट हमको क्या करना है, हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें डेटा कहीं सेंड करना है, किसी एंड पॉइंट से एक्सेस करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक गेट एंड पॉइंट डिफाइन करेंगे। सो हम लोग वो कैसे करेंगे, एट ऐप, ठीक है। और जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मेथड इज इक्वल टू गेट, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया, एक एनोटेशन यूज़ किया, एट ऐप एनोटेशन, जो कि डिफाइन करेगा अगर सर्वर चलता है हम इस एंड पॉइंट पे एक्सेस करेंगे तो ये जो भी डेटा है हमें एक्सेसिबल होगा। तो अगर मैं इसे यूज़ करके दिखाऊँ, बेसिकली इस फाइल को रन कर रहा हूँ। ये मेथड्स होगा।
ये मेरा सर्वर रन हो चुका है एंड सब जाता है। ठीक है, अगर मैं सिंपली इस सर्वर पे रन करूँगा तो मुझे कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। बट जब मैंने यूजर्स एंड पॉइंट डिफाइन किया था, यूजर्स हम इस एंड पॉइंट पे करेंगे तो वो पूरा डेटा फैच करके लाएगा, यहाँ डिस्प्ले करेगा। रिक्वेस्ट सर्वर एरर होगा तो एप्लीकेशन एरर। Just a second, let me see what's the error. So, अब मैं अगर दिखाऊँ, मैं बताता हूँ इधर क्या आया था। सो ये डेटा एक्सेसिबल है, लाइक जो भी मेरा डेटा था ये अभी एक्सेसिबल है। अब ये कैसे हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट रखा होता लाइक रिटर्न, एंड ये थोड़ा सा डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि जब हम फ्लास्क एप्लीकेशन को डायरेक्टली रन करेंगे तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि किस होस्ट पे चलेगा, किस पोर्ट पे चलेगा, एंड डीबग इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि कोई भी अगर हमें एरर्स आएगा तो प्रोडक्शन के टाइम लाइक डेवलपमेंट के टाइम हम देख सकते हैं, बट अगर सपोज मैं डिप्लॉय कर दूंगा इसे तो ये फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम लाइक अगर मैं तुम्हारा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ और उस टाइम कोई एरर आया तो मैं तुम्हारी वेबसाइट किसी वे से हैक कर सकता हूँ। सो सिक्योरिटी मेजर से उस टाइम फॉल्स होता है। सो बेसिकली ये हम इसे इस पे सेट करेंगे, होस्टेज जो हमारे लोकली अवेलेबल है, पोर्ट जो हमारा 5000 है, इसे हम अगर 8000 पे कर देंगे तो यहाँ पे ये जो डेटा होगा यहाँ पे 8000 पे अवेलेबल होगा। सो एंड द लास्ट इज डीबग इज इक्वल टू ट्रू, ताकि हम लोग जो भी एरर्स आए वो अच्छे से देख पाए। अगर मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, सपोज एंड पॉइंट यूजर लेता हूँ, तो ये प्रॉपरली डिफाइन करेगा द रिक्वेस्टेड यूआरएल एंड ये बेसिकली डिफाइन करेगा चेक योर स्पेलिंग। सो इसमें ये हुआ, एंड लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ यूज़र। अगर हमको क्रिएट करना यूज़र, फिर से हम लोग एक ऐप राउट लेंगे, एक रूट बनाएंगे कि हमको क्रिएट करना है यूज़र को। हम लोग मेथड अलग लगाएंगे। जो गेट मेथड होता है वो गेट से समझ में आता है कि गेट इज सारा जो भी डेटा होगा हम लोग गेट कर सकते हैं। पोस्ट इज हमको डेटा क्रिएट करना है, जब हमको डेटा क्रिएट करना होता है वी यूज द पोस्ट मेथड, एंड हम लोग इसमें सेम पॉइंट यूज कर रहे हैं क्योंकि जब रिक्वेस्ट आएगी किसी कहीं से मैंने रिक्वेस्ट एक्सेस की, स्पेसिफाइड होता है मेथड। सो जब इसमें इस ऐप में आएगा रिक्वेस्ट तो ये लाइक फाइंड करेगा कि अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो उससे यहाँ पे मैच नहीं होगा, यहाँ पे गेट है बट ये बस मैच हुआ, बट ये फेल हो गया, वो नेक्स्ट में जाएगा, वो देखेगा यहाँ यूजर्स है एंड यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहाँ मैच है, एंड इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा जो मैं अभी लिखूंगा, लाइक डिफाइन क्रिएट यूजर फंक्शन।
इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो अब हम यूज़र कैसे क्रिएट करेंगे, जो हमारे पास डेटा आएगा, लाइक जो हमारे पास ब्राउजर से डेटा आ रहा है या कहीं से भी डेटा आ रहा है जहाँ से हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक रिक्वेस्ट फॉर्मेट में आएगा और रिक्वेस्ट फॉर्मेट में होगा जेसन डेटा, जो मैंने जेसन यहाँ पे बताया था। तो ये इस फॉर्मेट में डेटा आएगा रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, जो मैं ब्राउजर से भेजूंगा, कहीं से किसी भी ऐप से भेज रहा हूँ। तो मैं उसे इस डेटा वेरिएबल पे लूँगा उस डेटा को, एंड अब अपन चेक कर लेंगे क्या पता इनकरेक्ट डेटा ना हो। तो अगर इफ नेम इन डेटा एंड ईमेल इन डेटा एंड पासवर्ड इन डेटा, तो अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि जो हमारे डेटा पे जो भी लाइक क्या बोल सकते हैं फील्ड्स होंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, हमारे डेटा में बस 3 ही फील्ड है, नेम ईमेल पासवर्ड, और ये तीनों होना चाहिए तभी हमारा डेटा सही है। क्योंकि हम लोग ने देखा था कि हम डिफाइन कर सकते हैं हमारी सिक्योरिटी क्या होगी, कौन कितना एक्सेस कर सकता है, एंड इसके हम लोग को ज़रूरी कि हम ये तीनों चीज़ लें यूज़र से। तो हमने देख लिया कि उस डेटा में नेम है कि नहीं है, उसमें ईमेल है कि नहीं है, उसमें पासवर्ड है कि नहीं है। अगर ये तीनों होगा तो हम अंदर आएंगे और क्या करेंगे, एक यूज़र रेस्पॉन्स बनाएंगे ताकि हम क्रिएट कर सके। ठीक है, नेम डेटा से हम लोग ले लेंगे नेम वाला जो भी है ऑब्जेक्ट, हम ले लेंगे डेटा से ईमेल, एंड पासवर्ड। तो इस डेटा से जो ब्राउजर से आया था हम उसमें से बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें ये वाली फील्ड चाहिए, इसमें से ये वाली फील्ड चाहिए और ये वाली फील्ड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सो बेसिकली जो था कि हम ये 3 चीज़ आसानी से एक्सेस कर सकते हैं इस डेटा में से। सो हमने ये डेटा एक्सेस कर लिया और फिर अब हम ये डेटा स्टोर कर देंगे डेटाबेस। तो रिजल्ट इज इक्वल टू कलेक्शन डॉट इंसर्ट। अब यहाँ पे बहुत सारे अपने फंक्शन जैसे देख सकते हैं, इंसर्ट मैनी, जब हम लोग को मल्टीपल डेटा एक बार में इंसर्ट करना हो, या इंसर्ट वन, तो हम इसमें से कौन सा ले सकते हैं, तो हमें बस एक ही डेटा इंसर्ट करना है एक बार में एक यूज़र का। तो इंसर्ट वन एंड यूज़र का वाला डेटा हमको इंसर्ट करना है, ये पास कर दिया, ये पूरा काम कर देगा, ये पूरा इंसर्शन एक बार में कर देगा, कोई क्वेरी लिखनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड हम रिटर्न कर देंगे जेसन फॉर्मेट में ये मैसेज कि डेटा इज इंसर्टेड यूजर क्रिएटेड। ठीक है, तो ऐसे हमारा डेटा क्रिएट हो जाएगा और एक आईडी भी ले लेते हैं ताकि पता चल जाए कि यूजर की क्या आईडी बनी है। इंसर्टेड आईडी रिटर्न करेगा ना, इस पे सेव हो जाएगा एंड इसमें से हम लोग उस इंसर्टेड डेटा की आईडी ले लेंगे एंड वो भी अपन यूज़र को दिखा देंगे कि हमारी ये आई एंड सक्सेसफुल रिस्पॉन्स दे देंगे। 201 अगर किसी को पता होगा कि अगर 200 रिस्पॉन्स आता है तो सक्सेस, मतलब जो भी हमने ऑपरेशन किया वो सक्सेस होता है, एंड अगर 404 या फिर 400 आता है तो वो फेलियर रिस्पॉन्स होता है। या फिर अगर सपोज हमारा इसमें से कहीं फेल होता है कि लाइक हमारा नेम नहीं है, ईमेल एंड पासवर्ड है, पासवर्ड नहीं है, तो हम एल्स कंडीशन में क्या करेंगे, फेल कर देंगे। फेल में रिटर्न डिसॉनिफाई एरर दे देंगे, मिसिंग रिक्वायर्ड फील्ड्स, एंड वैसे ही एक 400 रिस्पॉन्स दे देंगे उसे ताकि उसको पता चल जाए कि कुछ प्रॉब्लम हुई है, डेटा इंसर्ट नहीं हुआ है। सो अगर मैं फिर से रन करता हूँ इसको, हम पोस्टमैन यूज़ कर सकते हैं। पोस्टमैन इज़ बेसिकली अ टूल, अगर तुम लोग इंस्टॉल कर सकते हो कर लेना, बहुत इजीली इंस्टॉल हो जाता है। सो इट इज़ अ टूल जिससे हम लोग रिक्वेस्ट बना सकते हैं, जैसे कि दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ तुम सिलेक्ट कर सकते हो कि तुम्हें गेट या पोस्ट, बहुत सारी रिक्वेस्ट है लेकिन हमने अभी तक गेट डिफाइन किया है, पोस्ट डिफाइन किया है। तो अगर हम सिलेक्ट करते हैं हमें गेट करना है डेटा, गेट करना है कौन सी URL से, HTTP URL तुम्हें यहाँ मिल जाएगा, ये है URL जहाँ पे तुम्हारा सर्वर चल रहा है। तो ये है 127.0.0.1:5000/users। अगर हम इस पर गेट करेंगे
तो हमें ये जेसन फॉर्मेट में अगर देख सको तो इसमें बहुत अच्छे से फॉर्मेट हो गया था डेटा। अगर मैं ब्राउजर में करूँगा तो हम देखो यहाँ पे ब्राउजर में तुम्हें ऐसे शो करेगा डेटा एंड इसमें बहुत अच्छे से फॉर्मेटेड वे में शो करेगा। तो ये अभी तक मेरे डेटाबेस में सेव वैल्यूज़ हैं, तो ये वो गेट करके ला रहा है। अब से मुझे पोस्ट करना है, ठीक है, मुझे करना है पोस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए मैं जाऊँगा रिक्वेस्ट की बॉडी में जेसन। यहाँ किसी को प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो एक बार। तो ये सपोज मैंने डेटा पेस्ट किया, इसका फॉर्मेट होगा पाइथन डिक्शनरी के फॉर्मेट में। तो अब सपोज मैं अपना लेता हूँ डेटा, अब मैंने किया सेंड रिक्वेस्ट, यहाँ पे रिक्वेस्ट हुई एंड दिस मेथड इज नॉट अलाउड। पोस्ट यूजर्स 404। तो जब इसमें कोई एरर आया तो लाइक बेसिकली इसने सब कुछ फॉर्मेट कर दिया, ठीक है। अब एरर क्यों आया कि just a second. Myrtle have some doubt. When I try to run this command, हाँ it gets इसमें क्या करो, error. हाँ देखो नो मॉड्यूल इन क्लास, हाँ स्टॉप करना, इसमें यहाँ पे रन करना, ये मैं लिख रहा हूँ क्लास
या फिर कैपिटल एफ भी कर सकते हो उसे अगर ये रन नहीं हुआ तो। अब तुम्हारा पाइथन पाथ सेट है ना? एक बार चेक कर लूंगा मैं। ओके सर, एक बार चेक कर लूंगा। ओके, यू कैन कंटिन्यू। सो अभी लाइक इतना ही था, क्योंकि इसके बाद अपडेट एंड डिलीट पार्ट बचा हुआ है एंड गेट बाय आईडी, तो इसके बाद 3 फंक्शंस बचे हैं, बट अगर अभी करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो वील कंटिन्यू दिस टुमारो। सो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही, तो दे कैन प्लीज़ आस्क मी, या फिर मैं अपने सोशल भी शेयर कर देता हूँ। करना है डन। तुम्हारे फ्लास्क में प्रॉब्लम नहीं है कि वो इंस्टॉल्ड हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो तुम्हारे जो इंपोर्ट्स है ना, वहाँ पे अभी येलो लाइन्स दिखा रही है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है, बट वो इंपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो शायद तक उसका प्रॉब्लम हो सकता है कि वो पाथ सेट नहीं होगा। सो बेसिकली ये मेरे लिंक्डइन का हैंडल है, इसको स्कैन कर सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे रीच आउट कर सकते हो, या फिर अगर अभी भी कोई डाउट है तो उसमें पूछ सकते हो, या हम लोग बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग गेट बाय आईडी अपडेटेड एंड डिलीटेड का एंड पॉइंट बनाएंगे। सो ये वाला जो था, एक बार हम लोग कल फिर से रिवाइज करेंगे जो भी था उसका। सो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें रीच आउट कर सकते हो, या फिर कल भी वी कैन सी इट अगेन। And I'm also sharing the Discord server link where you all can post your doubts that will be solved there. You can also ask it now if you have any doubt. सो ये है, स्कैन कर सकते हो और डाउट्स का भी पूछ सकते हो, एंड कल मैं अपनी स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट वाली, या मैं अभी थोड़ी देर बाद शेयर कर दूंगा, तो वो भी हो जाएगा। Okay, so I don't think so anyone have any doubt. So that's all about today. You all can connect with Shashwat on his social, and we would love to hear your feedbacks on our Discord server. Thank you all for joining. Thank you, Shashwat, for today's session. We'll continue tomorrow.